تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں جمعرات کی صبح ایک بیکری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں تقریباً 20 لاکھ روپے مالیت کی مشینری جل کر خاک کی سر ہو گئی۔ پولیس کے مطابق اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آن لائن شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں بیکری کے ملازمین نے بتایا ہے کہ انہوں نے رات تقریباً 10:30 بجے بیکری بند کی تھی اور کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔ رات تقریباً 2 بجے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جس کے بعد بیکری میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ملازمین فوری طور پر عمارت سے باہر نکل آئے اور آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ آصف آباد فائر حکام نے بتایا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ آگ رات تقریباً 2:15 بجے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ بجھانے کے لیے ایک فائر انجن کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ حکام نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے بیکری کی مشینری کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جبکہ مزید تحقیقات ہے جاری۔ ورنگل ایل بی نگر کے A1 کنونشن ہال میں SIR ووٹر لسٹ پر خصوصی شور بیداری پروگرام کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام میں عوام کی کثیر تعداد شریک رہی۔ اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ افضل بیابانی قاضی پیٹ ورنگل نے کہا کہ ہمیں بہت ہی سمجھداری اور مکمل اطمینان کے ساتھ اپنے پورے دستاویزات کو BLOs کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا نام میپ نہیں ہوا ہے تو فوری اپنے ناموں کو میپ کروا لیں اور اپنے تمام ارکان خاندان کے ناموں کو بھی میپ کروانا چاہیے۔ تھوڑی سی غفلت بڑا نقصان کرے گی۔ آپ تمام پہلے بنگال کا حال دیکھ چکے ہیں۔ ووٹ کاٹ کر مرکز کی BJP حکومت اپنی حکومت کو قائم کر لی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مسلم عوام کے ووٹ کاٹ کر BJP حکومت قائم کرنے کے ارادہ رکھتی ہے۔ ہمیں اپنے ووٹ کاٹنے سے بچنا ہے۔ ورنگل کے تمام عوام کو اگر کسی دشواری کا سامنا ہو تو فوری ہم سے رابطہ پیدا کریں۔ اس موقع پر سابقہ کارپوریٹر محمد فرقان نے کہا کہ ورنگل ایسٹ تمام ڈویژن کے مسجدوں کے ذمہ داری سے آگے آئیں تو وہ ہر ڈویژن کے ان میپ لسٹ کو ان مسجدوں کے ذمہ داران کو حوالے کریں گے۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ مدد کے لیے تیار رہیں گے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر پرتیک جین اور ضلع SP پریتیوش پنکج نے خصوصی جامع ووٹر لسٹ نظرثانی پروگرام یعنی کہ SIR سے متعلق بیداری اور منشیات کے خاتمے کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سنگاریڈی میں 2K رن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ ووٹ کا حق آئین کا دیا ہوا ایک طاقتور ہتھیار ہے اور ہر اہل شہری کو ووٹر فہرست میں اپنا نام درج کروانا چاہیے۔ ضلع SP نے منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے عوامی تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں سے منشیات کا استعمال نہ کرنے کی اپیل کی۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میں آج ریاست تلنگانہ برقی CMD ورون ریڈی مختلف علاقوں کا علاوہ کاغذ نگر برقی ڈویژن کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر مختلف برقی سب اسٹیشنوں میں برقی عہدیداروں کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی اور مزید عوام کو برقی سپلائی میں اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق برقی سب اسٹیشنوں کی منظوری کرتے ہوئے عوام کو برقی کی سہولتیں فراہم کرنے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر برقی عہدیداروں میں ناگر راجو، عرفان احمد، سدھاکر کے علاوہ انجینئرز، سب انجینئرز کے علاوہ برقی عہدیداروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جگتیال ڈسٹرکٹ کے پولیس ہیڈ کوارٹر میں غیر استعمال شدہ الیکٹریکل، کمپیوٹر اور لکڑی کے سامان کی عوامی نیلامی شفاف طریقے سے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ نیلامی ضلع SP شری اشوک کمار IPS کے حکم پر ایڈیشنل SP شری چیتن نتن IPS کی نگرانی میں کمیٹی کی سرپرستی میں کی گئی۔ نیلامی میں موجود اشیاء کو 3 سلاٹوں میں تقسیم کیا گیا اور نیلامی کا انعقاد عوامی سطح پر کیا گیا۔ ایڈیشنل SP چیتن نتن IPS نے کہا کہ اس عمل کے ذریعے حاصل ہونے والی پوری آمدنی سرکاری قواعد کے مطابق سرکاری اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ SP DSP وینکٹ رمنا، ریزرو انسپکٹر کرن کمار سائدلو، CCS انسپکٹر سرینیواس، RSI اور خریداروں نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ جگتیال ضلع SP اشوک کمار IPS نے جگتیال واسوی گارڈن میں پولیس کی جانب سے منعقدہ منشیات کا استعمال اور اس کے مضر اثرات شعور بیداری پروگرام سے نوجوانوں طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر طالب علم کو انسداد منشیات کے لیے جنگجو کے طور پر کام کرنا، اعلیٰ مقصد حاصل کرنے اور والدین اور ضلع کے نام روشن کرنے کا مشورہ دیا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے سے صرف اچھی اقدار سیکھیں اور برے لت اور منشیات کے عادی ہو کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں۔ ضلع کلکٹر نے BLO فارم کی گھر گھر تقسیم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ خصوصی ووٹر لسٹ ترمیم یعنی کہ SIR پروگرام کو شفاف اور مؤثر انداز میں انجام دیں اور ہر اہل ووٹر کو وہ موقع فراہم کریں۔ ضلع کلکٹر نے غیر اعلانیہ طور پر جس طرح BLO گھر گھر جا رہے تھے اور جگتیال رورل منڈل کے چلکل گاؤں میں BLOs SIR فارم کی ووٹر میں تقسیم، تفصیلات کی ریکارڈنگ، فیلڈ لیول پر آگاہی پیدا کرنے اور دیگر پہلوؤں کا معائنہ کیا اور متعدد تجاویز پیش کی۔
इख्तियार जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने मेडीपल्ली मंडल मुस्तखर में वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने क्लासरूम का दौरा किया और तलबा से बातचीत की और उन्हें सबक के मुतालिक सवालात किए। उन्होंने तलबा से तालीमी मियार के बारे में दरियाफ्त किया। बाददा कलेक्टर ने स्कूल में चलाई जा रही मिड डे मील स्कीम का मुआयना किया और तलबा से पूछा कि क्या तलबा को मेन्यू के मुताबिक खाना मिल रहा है। उन्होंने तलबा के साथ खाना खाकर खाने का मियार चेक किया और मुतालिका हुक्काम को सफाई और स्कूल के इंतजाम के हवाले से कई तजावीज़ पेश की। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए अरादी सर्वे को दोबारा सर्वे के मौके पर जगतियाल एडिशनल कलेक्टर BS लता ने जगतियाल जिले के मल्लापुर मंडल इंदिरा नगर में मोहदे में अरादी के दोबारा सर्वे से मुतालिक मुनक्किदा बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए इस ग्राम सभा में किसानों और गाँव के लोगों को सर्वे और बाउंड्री एक्ट 1923 के बारे में आगाह किया, जो कि जमीन के दोबारा सर्वे में कानून के दायरेकार है, और सर्वे की सरगर्मियों और सर्वे के काम की जगहों के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में लैंड सर्वाइवर AD किशन प्रसाद, तहसीलदार, मुतालिका अमला, BLO और दीगर ने हिस्सा लिया। एसआईआर अमल को सख्ती से चलाया जाए। जगतियाल जिले एडिशनल कलेक्टर BS लता ने BLOs की जानिब से फॉर्म्स की घर घर तकसीम का मुआयना किया। जिले एडिशनल कलेक्टर BS लता ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एसआईआर प्रोग्राम को शफाफ और मौसर अंदाज में अंजाम दें और हर अहल वोटर को मौका फराहम करें। BLOs के जरिए मल्लापुर मंडल के गाँव मध्यमपेट में मोहदे में घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म तकसीम का अचानक मुआयना किया। जगतियाल जिले अखिलती सेल कांग्रेस पार्टी सदर, साबिक म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन, साबिक काउंसलर सिराजुद्दीन मंसूर ने जगतियाल शहर में शुरू किए गए एसआईआर प्रोग्राम का वार्ड नंबर 46 में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने BLOs और बूथ लेवल एजेंट से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू किए गए एसआईआर प्रोग्राम के बारे में चौकस रहें और इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करने जगतियाल जिले के अवाम से ख्वाहिश की। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटन और दोबागुड़ा गांव से होते हुए नागपुर को जाने वाली सड़क गुज़िश्ता कुछ दिनों से शदीद बारिशों की वजह से नाकारा हो चुकी है। इस वजह से अवाम और रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली गाड़ियों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अवाम और गाड़ियों के मालिकीन का हुकूमत से मुतालबा है फौरी तौर पर सड़क की दुरुस्तगी की जाए और रियासत महाराष्ट्र को जाने वाली नाकारा सड़क को दुरुस्त करते अवाम को सहूलत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया जाता है। सिरपुटौन मंडल में SIR प्रोग्राम का तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन के ज़ेर निगरानी में घर घर फॉर्म की तकसीम का आगाज। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटौन मंडल में आज तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने लगभग 40 BLOs के अलावा अहदेदारों के साथ मिलकर SIR फॉर्म को घर घर पहुंचाया और SI फॉर्म्स की तकसीम करते हुए खानापुरी से तफसीली तौर पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई। SIR फॉर्म की खानापुरी करने के बाद BLOs को वापस देने का अवाम को मशवरा भी दिया। LRD में आज से SIR सर्वे का काम शुरू हो गया है। GPO श्रीनिवास ने आज म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन व शेख मजाजुद्दीन को SIR के फॉर्म हवाले करते हुए मशवरे दिए। शेख गयासुद्दीन ने हर मुस्लिम वोटर को SIR फॉर्म मिलने पर सही तरीके से खानापुरी करके मुताल्लिका ऑफिसर के हवाले करने की सलाह दी। बोधन में आज से शुरू हुए SIR वोट मैपिंग के दौरान बूथ लेवल वोटर्स को एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करने के कामों का आगाज अमल में लाया गया। इसी ज़िमन में RDO बोधन विजय कुमारी ने शहर के बलदी हल्के नंबर 5 और 6 का दौरा किया और BLOs की जानिब से जारी मैपिंग के कामों का RDO विजय कुमारी ने मुशाहिदा किया और मोबाइल ऐप के जरिए खानदान के वोटरों के मैपिंग के अमल का जायजा लिया। मुताल्लिका अफराद खानदान को एनुमरेशन फॉर्म तकसीम किए। इस मौके पर तहसीलदार बोधन विठल और वार्ड नंबर 6 के काउंसलर मोहम्मद जहीर और वार्ड नंबर 5 के काउंसलर समीर अहमद भी मौजूद थे। तलबा तंजीम तेलंगाना विद्यार्थी परिषद की जानिब से MIO ऑफिस बोधन के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर बोधन डिवीजन सदर M नागेश ने खिताब किया और कहा, खानगी स्कूलों में मुय्यना तौर पर तलबा को किताबों की गैर कानूनी अंदाज में फरोख्त करते हुए मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। तलबा तंजीमों की जानिब से एतराज के बावजूद स्कूल इंतजामिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। MIO बोधन से रुजू होने पर वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने तलबा कायदीन ने जिले कलेक्टर निजामाबाद से मुतालबा किया कि वो
खानगी स्कूलों में किताबों की गैर कानूनी फरोख्त ज्यादा कीमतों की वसूली पर फौरी कार्रवाई की जाए। बोधन में जलसा बयाद शहीद आजम शोदा करबला का बतारीख 10 मुहर्रम जुमा को बाद नमाज जुमा बामुकाम जामे मस्जिद उस्मानिया रंजल बेस बोधन में मुकर्रर है। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी निज़ामी का खुसूसी खिताब होगा। मस्जिद हाजा के इंतजामी कमेटी के सदर मोहम्मद गानम ने बोधन शहर के अतराफ अकनाफ के आमद मुस्लिमीन से इस जलसे में शिरकत की अपील की है। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर दीनी मदरसे इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का आगाज होकर 75 साल मुकम्मल हो गए हैं। 76 सालों में दाखिल होने पर दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम कागज नगर डेवलपमेंट कमेटी सदर मोहम्मद इमामुल्लाह के अलावा मुकामी उलमा के ज़ेर क़यादत में दीनी मदरसे का 75 साल जश्न प्रोग्राम कामयाबी से इनेकाद होने पर मौलाना हजरत अतीकुर रहमान असदी ने अपने हमरा हुफ़ाज़ के साथ मिलकर सियासत न्यूज़ से गुफ्तगू की और मौलाना हजरत अतीकुर रहमान असदी ने कहा, माशाअल्लाह कागज नगर का दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का 75 साल जश्न हुफ़ाज़ के उलमा अकराम की तहनीती प्रोग्राम की कामयाबी पर दीनी मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम डेवलपमेंट कमेटी अराकीन और असातिज़ा की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम हुफ़ाज़ उलमा के अलावा दूर दराज मुकाम से 75 साल जश्न प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर तमाम से मैं इज़हार तशक्कुर करता हूँ। एल्लारेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इमारत की मरम्मत के कामों का आज जिले इंटरमीडिएट नोडल ऑफिसर शेख सलाम ने मुआयना किया। मुतालिका गुत्तेदार को मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर निजाम और दूसरे भी मौजूद थे। बांसवाड़ा में वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच मुहिम तेज। बूथ 227-28 में डोर टू डोर फॉर्म तकसीम। इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर रियासत में जारी स्पेशल इंटेंसिव एनुमरेशन मुहिम के तहत बांसवाड़ा हल्का असेंबली के बूथ नंबर 227 और 28 में डोर टू डोर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बूथ लेवल ऑफिसर्स वानी मैडम और श्री कपिल की निगरानी में ये फॉर्म्स तकसीम किए गए, जिसमें म्यूनसिपल माविन मेंबर खमर सुल्ताना गौस ने हर घर जाकर फॉर्म तकसीम की आवाम बेदारी पैदा की। एल्लारेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इमारत की मरम्मती कामों का आज जिले इंटरमीडिएट नोडल ऑफिसर शेख सलाम ने मुआयना किया। मुतालिका गुत्तेदार को काम जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इंचार्ज प्रिंसिपल डॉक्टर निजाम और दूसरे भी मौजूद थे। मौलाना सैयद हबीब अहमद कासिमी के हाथों दीनी मदरसे के पहले हाफिज मौलाना मोहम्मद मोहसिन अली मजहरी की दस्तार बंदी। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के दीनी मदरसे इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम का आगाज सन 1951 में अमल में लाया गया था। दीनी मदरसे के 75 साल मुकम्मल होने पर जश्न 75 साल और दीनी मदरसे के हिफाज काम को तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिले कामरडी मंडल पिटलम पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर अंजनरू की इत्तला के मुताबिक जिले एसपी राजेश चंद्र IPS के अहकाम पर कल यानी कि 26 जून बरो जुमा के सुबह 6:30 बजे अम्बेडकर चौरास्ते पर मुनशिया से पाक तेलंगाना हमारा मकसद के उन्वान पर शोर बेदारी प्रोग्राम इनेकाद किया जा रहा है। इससे पहले पुलिस का अमला 2 किलोमीटर रन भी करेगा। आवाम ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की जाती है। एल्लारेड्डी रुकन असेंबली मदन मोहन की मौजूदगी में आज मंडल नागिरेड्डीपेट के माल्त मेदा ग्राम पंचायत बॉडी अरकान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और कहा, कांग्रेस पार्टी के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में तेलंगाना माइनॉरिटी चेयरमैन मोहम्मद इरफान अली की तहनीती तकरीब। इरफान अली के एजाज में एक पुरवकार तहनीती तकरीब का दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। मजहबी शख्सियात और मुहफ़्फ़ाज़ ने इसमें शिरकत की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासिमी इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया जनरल सेक्रेटरी जमीयत दीनी तालीम बोर्ड व खादिम दारुल उलूम सईदिया ने मोहम्मद इरफान अली को अहम जिम्मेदारी पर फायज होने पर मुबारकबादी भी पेश की।
کامیڈی म्यूनसिपल चेयरपर्सन उमा रानी सिवास ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने घर पर खुद अपनी वोटर तफसीलात की तौसीक कराई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि अफसरान भी ये लोग घर घर जाकर वोट मालूमात की जांच करेंगे, लिहाजा शहरी अपना मुकम्मल ताउन पेश करें। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन की जानिब से दस्तूरी तौर पर चलाई जा रही इस मुहिम का मकसद वोटर फहरिस्त को दुरुस्त और गलतियों से पाक करना है। प्रोग्राम में वार्ड ऑफिसर स्रवंती, सुपरवाइजर बालराजू, आरपी शैलजा और दीगर ओहदेदार और कारकुनान भी मौजूद थे। कामारेड्डी जिले पुलिस ने ऑपरेशन कावच के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगली जानवरों के गैर कानूनी शिकार मुलविस 8 उग्री गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जिले एसपी एम राजेश चंद्र के मुताबिक गंधारी पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 5 देसी बंदूकें, 1 एयर गन, शिकार का सामान और 2 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पुलिस ने मजीद असला और शिकार के आलात भी बरामद करते हुए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जमात इस्लामी बांसवाड़ा के सीनियर रुकन जनाब तुराबुद्दीन साहिब मरहूम के इंतकाल पर साबिक एमएलए रविंदर रेड्डी ने आज उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात की और पुरस्कार दिया। इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने मरहूम के अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा मरहूम तुराबुद्दीन साहिब नेक सीरत और हमेशा समाजी फलाह बहबूद के कामों में पेश रहा करते थे। इस मौके पर साबिक सरपंच मास्तानी सिवासेडी, साबिक ZPTC के भास्कर, सीतायपली सरपंच अमजद खान, मरहूम के फरगंदान शौकत, शफी, हाफिज शकी ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। बांसवाड़ा अहले सुन्नतुल जमात के मसाजिद के सदूर कमेटी अरकान गुस्ताखे रसूल नाजिया इलाही खान के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर को तहरीर दोस्त पेश की। आशिकान रसूल ने कहा हम जान माल कुर्बान कर सकते हैं मगर आका सल्लल्लाहु की शान गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। याददाश्त में शैतान सिफत गुस्ताख के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। बांसवाड़ा अहले सुन्नत मरकज के सदर नईम समेत तमाम मसाजिद के जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि मजहबी शख्सियत के खिलाफ गुस्ताखी पर सख्त कानून बनाया जाए ताकि आइंदा कोई दिल आज़ारी न कर सके। ड्रग्स के खिलाफ आवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से सिलसिला जिले के गंभीरापेट में एक इज़्तिदाद नशियात आगाही रैली निकाली गई। इस रैली में ऑक्सफोर्ड स्कूल के तलबा तलिबात ने जोश खरोश के साथ शिरकत की। रैली का एहतमाम गंभीरापेट पुलिस की जानिब से किया गया था, जिसकी क़यादत सब इंस्पेक्टर केसरीकात कर रहे थे। तलबा ने हाथों में पल्ले काट उठाकर नशियात के मुज़िर असरात के बारे में आवाम को आगाह किया और नौजवानों से नशावर अशिया से दूर रहने की अपील की। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर श्रीकांत ने कहा मुनशियात नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को तबाह कर देती है। मुआशरे की हरकत की जिम्मेदारी है कि वो मुनशियात के खात्मे के लिए पुलिस का भरपूर ताउन करें। उन्होंने तलबा को सेहतमंद और मुस्बत सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन की। रैली में पुलिस एहलकारों, असातिज़ा और तलबा की बतदाद ने शिरकत की। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के इंचार्ज वज़ीर जोपल्ली कृष्णा राव के दौरे भैंसा के तनाजुर में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लेने निर्मल जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा IAS ने आज मधूल MLA रामाराव पटेल के हमरा जायजा लिया। इस मौके पर बल्दिया भैंसा के इलाके में डबल बेडरूम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड लेवल पर मुआयना किया गया। मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी गई कि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ के बगैर ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाए। उन्हें तरक्याती कामों के मियार पर पूरा उतरने और ज़रूरी कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने इक़दाम करने भावेश मिश्रा ने हिदायत दी। इस मौके पर सब कलेक्टर और दूसरे भी मौजूद थे। LID के एदा वर्शिप सेंटर एदा ग्राउंड पर कॉप्स हेल्थ फाउंडेशन और इंडिया मेडिकल मिशन के तहत एदा के फाउंडर ब्रदर श्रीवाचारी और सिस्टर हेपीसबाचारी की निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें LID DSP श्रीवासराव RDO प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कैंप में जरूरतमंदों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई और मशवरे भी दिए गए। इस मौके पर 4 तब 500 अफराद का मुफ्त में तिब्बी मुआयना किया गया।